Good afternoon, all of you. This session is on Research Fundamentals and Tool Development, Session 1. Basically, we are trying to, first identify the requisites of why research has to be incorporated in our curriculum. And these are the series, and we will land up to mastering research paper writing by the end of the next week. So the planning is as such that the terminology from fundamentals will go to mastering directly. But the only way thing is that we will require efforts for that and contribution. So before the load gets started too much uh, of your further subjects, assignments, and everything, we will try to utilize this time, for research paper writing. So without wasting much time, we will start this session. This is Dr. Aisha Butalia. I have got 25 years of experience, almost 70 research papers published, along with 30 as a main author, and rest with the PhD students, undergraduate students, MTech students. So just trying to share my knowledge and experience for this particular thing. I'm already teaching reinforcement learning this semester. So what is reinforcement learning? It is basically, you make your machine learn or train with the help of experience and feedback. So this is how even this session is going to be. So supervised learning is something where the data is labeled, but we try to reinforce the upcoming applications of machine learning are for reinforcement learning, where we are. The best example which I have quoted just in morning's lecture is about the emotion recognition. तो हम लोग इमोशंस को जनरली टैग कर सकते हैं कि whenever we are happy and we smile, our lips they expand. Whenever we are frowning, our eyebrows just get up, and so on. So these are some of the tags which are given. So in psychologists stream, they have already some faces where they note that this is a smile face, this is a sad face, this is a fear face. Okay, that's called tagging of the pics and the emotions. But do we really in childhood do we tag with these emotions through some training? No, we understand through experience. हम देखते हैं कि अरे ये खुशी का वातावरण है तो हमें स्माइल आ ही जाती है. So everybody is laughing here. So maybe the environment is somebody has cracked the joke. If everybody is smiling, not frowning, so everybody is just calm and composed. These things we have learned from childhood, from our experiences. हमें किसी ने सिखाया नहीं है कि जब कोई रोता है तो उसके आंख से आंसू आते हैं. ये हमें सिखाया नहीं जाता है. दिस इज हाउ वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. ठीक है. मे बी चिल्ड्रन आर दे वेल दे आर वेल वर्स्ड मोर विद द इमोशंस. दैट्स व्हाई दे प्ले विद द पेरेंट्स. उनको अगर कोई चीज डिमांड करनी होती है, मे बी शायद जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारा दिमाग इस तरीके से कम दौड़ने लगता है. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, इट वॉज फ्रॉम री लर्निंग. The point is that uh, you need to understand first that why this session is arranged. Why do you really want to write a paper? Why do you really want to write a research paper? है ना, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि रिसर्च पेपर लिखने का इंपॉर्टेंस क्या है तो इतना सब जो हम आगे स्लाइड्स रन करने वाले हैं, दैट्स ऑफ नो यूज. But before we start that, the learning objectives of these sessions are that we will try to study the different types and structure of the research papers. The topic development, we will try to identify a topic for your research paper. That also we will learn. Academic writing norms. So see, there is something called as technical writing. हम जब रिसर्च पेपर लिखते हैं तो हम कोई स्टोरी के जैसे नहीं नरेट करते या एक नॉर्मल बुक की तरह नहीं एक्सप्लेन करते. इट्स अ रिसर्च पेपर, सो देयर इज समथिंग मोर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट. और उसके ऑब्जेक्टिव्स अलग है और उसकी राइटिंग की टेक्नोलॉजी भी अलग है. दैट्स कॉल्ड टेक्निकल राइटिंग. ओके, सो वी विल बी understanding those academic writing norms as well. And of course, today there are a lot of tools available with AI to even write a research paper, which will help you. Okay. Now, recently we had IEEE internship. It was started a month back. And let me tell you, we have come out with very good research papers. जहाँ पे when we met them first time, it was online totally. So they are from different parts of the country. So हमने उनको देखा नहीं ऑनलाइन, उनके ऑलरेडी लेक्चर्स भी शुरू हैं. Okay, they spent some couple of hours
and only in 6 meetings they have finalized a very good research paper, which I don't think even PhD students have are coming up because of their busy schedule. So these are second year students. So I'm just trying to say that in 1 month span of time, they have also come up with no such technical sessions. हमने उनको ट्रेनिंग नहीं दी, सिर्फ वन ऑन वन एक couple of meetings लेके. So I think even you can do it. But why? In our times, at least used to require 6 months to write a research paper. But now because of AI, it's possible that जब submissions की बात आती है, people also can write a research paper in 4 days, provided they sit the entire nights for that. But of course, their technical background has to be a little bit stronger. So why research paper and why research matters for that case? Okay. So coming with that, first we will understand that क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं एंड रिसर्च करना क्यों इम्पोर्टेंट है और उसका आउटकम क्या है, रिसर्च पेपर. करेक्ट. अभी के लिए तो भी बहुत सारे रिसर्च आउटकम्स हैं, पर अभी के लिए रिसर्च पेपर रखते हैं जो इस सेशंस का आउटकम होगा. हमें क्राफ्टिंग करना है. व्हाई वी वांट टू राइट, व्हाई वांट टू क्राफ्ट योर क्वेश्चन? क्योंकि हम रिसर्च पेपर किस टॉपिक पे लिखने वाले हैं, ये भी तो हमें बहुत ही प्रिसाइज तरीके से समझना होगा. अगर हमें ही टॉपिक नहीं समझा है तो हम क्या रिसर्च करेंगे, क्या बताएंगे एंड व्हाट नॉट. सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी क्राफ्टिंग योर क्वेश्चन. ओके. एंड द नेक्स्ट स्टेप वुड बी दैट यू वुड बी डूइंग सम लिटरेचर सर्वे, सम इन्वेस्टिगेशंस. क्योंकि जो भी आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया है ना, उस पे लोगों ने क्या काम किया है, क्या टूल्स उस पे अप्लाई हो सकते हैं. आप आज अपने ऑफिस में बैठ के भी यू कैन इंटरेक्ट टू द वर्ल्ड, सो दैट ऐसा ना हो कि आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया है वो तो बहुत ही आउटडेटेड है, आपको लग रहा है कि वो बहुत नया है ना. सो इट शुड नॉट हैपन. सो दैट इज कॉल्ड एज preliminary research, which we call it as literature survey or investigation. This is a recorded session. So if it's going fast for the slow learners, you can just rewind it and see it. And I'm going with the normal phrase for all the normal learners. But you can just interrupt and let me know if something is. So these are different types of, sites where this is, of course, a recommendation, but there are a lot many. You can explore more as per your comfort. So this will help you to understand, to get the various resources to identify कि जैसे अगर आपको आपका आइडिया दो टाइप का होता है. एक कि बिल्कुल ही नया, बिल्कुल नया, तो उस पे आप पेटेंट फाइल कर सकते हैं. आइडिया पे पेटेंट फाइल होता है, बाद में उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट आप शुरू कर सकते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज दैट द प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इट हैज बीन सॉल्व्ड ऑल्सो. ओके. बट यू प्रोवाइड अ बेटर सोल्यूशन. So that is a type 2 problem. So type 1, totally innovative. Type 2 is reinvestigation. That means problem is identified, solution is identified, you reinvestigate, you do some research. So research वहां से word आता है कि search करने के बाद okay. Re means re के बहुत सारे आप मीनिंग्स निकाल सकते हैं. री का retransform the solution, revise the solution, and so on. So the research means it is saying that something is which is not novel, but it can be modified and improved. That's a type 2 problem. Type 1 is totally novel. However, type 2 प्रॉब्लम पे भी आप पेटेंट फाइल कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल किसी ने बॉटल डिजाइन किया है, डेकेथलॉन के बॉटल्स आर पेटेंट फाइल्ड. उनका वो स्ट्रक्चर, nobody else tries to make that type of water bottles. Okay. उसमें आपने देखे होंगे फ्लोरेसेंट ग्रीन, ब्लू, रेड, ग्रे आता है. उसका जो हैंडल है, दैट इज इट्स स्पेशलिटी, कि उसका हैंडल जो है उसमें ग्रिप है. तो आपका you don't have to carry your bottle near your shoulder, you can just hold it like a bag. Secondly कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि you can clean it well. कुछ कुछ बॉटल्स के नोजल इतने छोटे होते हैं that you cannot clean them properly. So there is a formation of algae in the water, so you need to reuse or rethrow it. So in that decathlon bottle, that's why it has been patented and well designed and nobody tries to copy. So the point is कि क्या पहले कभी वाटर बॉटल्स नहीं थे. डेकेथलॉन तो अभी अभी आया कुछ years back, and then their bottles got patented. So the point to be noted is that type 2 problems can also be patented. This was the thing I want to highlight. So before I go to type of research papers, you can have endless things to be learned on this. But पहले मुझे ये जानना है आप लोगों से कि रिसर्च क्यों करना है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है,
और रिसर्च पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। उसके लिए आप चैट जीपीटी यूज कीजिए, डीप सीक यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं से भी रिसोर्स से ढूंढिए, समझिए और मुझे बताइए प्लीज। I'll give you 2 minutes for that. But for the meanwhile, I'll just stop the recording so that when it is recorded, this time is not wasted during your, revision. That's why. कि टेक्नोलॉजी में गैप्स कितने हैं, और इससे रिलेटेड और क्या क्या किया जा सकता है चीज़ों के बारे में, लाइक किसी भी फील्ड को या प्रॉब्लम को जानने के लिए रिसर्च करना चाहिए। एंड रिसर्च पेपर लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमने उसमें क्या किया एग्जैक्टली वो चीज़ सबको बताने के लिए रिसर्च पेपर लिखना ज़रूरी है। ठीक है। अ, आप अपना नाम बताएंगे, इफ यू आर ओके विथ इट, बिकॉज इट्स रिकॉर्डिंग गोइंग ऑन। पुष्कर। ठीक है। तो पुष्कर, आपने अपनी राय बताई दैट व्हाई वी शुड डू रिसर्च, वेरी गुड, कि वी शुड नो मैम व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट टाइप ऑफ न्यू प्रॉब्लम मैम स्टेटमेंट्स आर आई कमिंग अप। एंड रिसर्च पेपर इसलिए मैम जरूरी है, आपने आई बताया कि हमें दुनिया को बताना है थ्रू आर रिसर्च पेपर्स दैट व्हाट आर योर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू दीज यू नो रीसेंट टॉपिक्स कमिंग अप इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। करेक्ट? यही बोलना था ना आपको? यस मैम। हाँ, अभी आपने अपना नाम नहीं बताया। तो आपने नाम नहीं बताया तो ये जनरल पर्सपेक्टिव हो गया, लेकिन जब आप अपना नाम बताते हो कि, तो उससे ये होगा कि पुष्कर इज ट्राइंग टू टेल व्हाट इज हिज पर्सपेक्टिव अबाउट रिसर्च, एंड वन ऑफ द आउटकम ऑफ रिसर्च इज रिसर्च पेपर। करेक्ट ना? तो ये पुष्कर बता रहा है। सो सेम वे, रिसर्च पेपर इज अ recognition ऑफ वेयर योर कॉन्ट्रीब्यूशन, बिकॉज जो भी रिसर्च पेपर पब्लिश होता है तो उसमें ऑथर्स रहते हैं। So it is telling to the entire fraternity that what is the contribution of Pushkar in the world of technology and science. So that is a very authenticated thing. So obviously, if you want to, tell that you are a researcher, you should be revealing somewhere. तो आप अगर बायोडेटा में लिखते हो कि आपका रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है, सो ऑटोमेटिकली इट रिवील्स दैट यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी फर्स्ट। आप कंट्रीब्यूशन कब कर पाए? क्योंकि आपने कुछ चीजों की पढ़ाई की, कुछ रिसर्च किया, रिसर्च यानी कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, एंड यू लेवल्ड अप योरसेल्फ टू a stage where you could showcase that to the world through in the form of research paper. Are you getting my point, all of you? Yes? तो क्या क्या चीजें हेलो मतलब, हेलो, ओके, इज yes दिस ma'am क्लियर? ma'am I want to add one point in this research paper. Research paper is basically that we take the data from any site and we go to understand that what is the trend now going on and how we have to perspective it or result it so that we can develop a new model. It is like a data analytics. Yes ma'am. यस यस, दैट इज Analytics thing. एब्सोल्युटली यस। दिस इज द टाइप टू प्रॉब्लम, यही हमने डिस्कस किया था ना। टाइप टू यही प्रॉब्लम है कि जो एग्जिस्टिंग है उसका नया मॉडल हमें बनाना है, इम्प्रोवाइज्ड वन। करेक्ट ना? ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप रिसर्च और रिसर्च पेपर के थ्रू अचीव कर सकते हैं। ये तो हमने यहाँ पे एक ब्रीफिंग आपको की, सो दैट फर्स्ट यू शुड नो, आर यू रेडी टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी? आप अपना नाम अ, दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं आपके कंट्रीब्यूशन को, तो आप रिसर्च पेपर लिखिए। यदि आपको नहीं करना है तो फिर आप अपना ये टाइम भी वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी, it's not very difficult, but yet, yes, to show a contribution to the world, it is challenging. But I think in very less time, by some efforts on some small problem statement also, with whatever existing knowledge you have, जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या है, स्टूडेंट लाइफ में आप और ज्यादा रिसर्च क्यों कर पाते हैं? क्योंकि यू आर अपडेटेड विथ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स। नाउ एज अ टीचर, ट्राई टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कितने सब्जेक्ट्स अभी इस सेमेस्टर में पढ़ा रही हूँ? Couple of subjects, not all. You are learning more than me. I'm teaching, okay, but you are learning. So while you are learning, you have a lot of fresh concepts in your mind. आप बहुत सारे assignments करते हैं,
जस्ट अगर आप उसी असाइनमेंट्स को थोड़ा और रिफाइन करके, बहुत सारा कंसाइज करके, आप उसको अगर जो भी आप असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट या वट इफ यू शोकेस विद द हेल्प ऑफ रिसर्च, तो इट इज जस्ट अ good product. It's not a byproduct. It's actually a very good product of whatever you're doing through your learning process. Okay. So this point is hopefully clear. क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि रिसर्च पेपर लिखना क्यों है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये फैसिनेट करेगा। तो ये पॉइंट क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर्स। ओके। सो फर्स्ट इज एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब यहाँ पे ऑलरेडी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीपीटी वीडियोस सब आपको शेयर कर दूंगी इन केस इफ यू वांट टू रिकैप इट नाउ। ये देखिए यहाँ पे मैंने रेफरेंस लिखा है कि मैंने कहाँ से ये रेफरेंस लिया, ये टाइप, ये मैंने तो नहीं बनाए, दिस इज नॉट आई हैव डिफाइंड इट। ओके, आई हैव टेकन फ्रॉम रिसोर्सेस ना। ये मैंने जानबूझ के क्यों यहाँ पे मेंशन किया? Even if you copy from somewhere, you should refer it. Otherwise, that comes under plagiarism. ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी जो चीज ऑलरेडी बनी है हमें वापस से क्यों बनाना है? दिस इज एक्चुअली वेस्ट ऑफ टाइम। सो यू आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग को सिर्फ अच्छा से सुंदर बना के इसी का मैं फॉर्मेट चेंज कर लूं पीपीटी का, डजंट मेक एनी सेंस। ओके, वर्ल्ड हैज गॉन मच मोर बियॉन्ड एंड एआई इज लाइक यू कैन क्रिएट पीपीटीज इन जस्ट 2 minutes. So we are not competing with that. In fact, we are using that to save our time to do something better, okay, and make money economically, improve the country, yourself, family, everything. So it is written here, examines an issue और आइडिया प्रेजेंटिंग बोथ साइड्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। अभी ये सिर्फ यहां से रिसोर्स लिया है, हो सकता है आपको कुछ और ऐड करना हो, टाइप आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। रिसर्च भी यही है, जो ऑलरेडी किसी ने लिखा है, अब किसी ने बुक भी लिखी है तो वो भी तो उसके एक्सपर्टीज से लिखी है। आपको अगर उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, यू राइट अ बुक चैप्टर, you write a research paper on the lacunas of that book or maybe contributions on that book. So research is that. Okay, it is not ki I am saying this is wrong, I am saying that okay, this is right, I have something more to put up. That is research. Okay, so examines an issue or idea presenting both sides of an argument. It means कि कोई तो एक आइडिया है और आप एज एन इवेल्युएटर वो दोनों साइड्स को आप जज करके उस पर पेपर लिख रहे हो, बोथ द कॉइन्स। ओके, बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन रादर। आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब एक डिबेट की तरह, भैया यस और नो में से मैं अगर यस के साइड में हूं तो मैं यस को ही क्लेम करूंगी, आई एम टोटली अगेंस्ट द नो। तो ये आर्ग्यूमेंटिव टाइप ऑफ पेपर हो सकता है। एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल मतलब आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। फॉर एग्जांपल, आई वाज डूइंग माय एमई प्रोजेक्ट ऑन मशरूम प्लांट एनालिसिस इन ईयर 2006 एंड मैंने यूसीआई रिपोजिटरी से डेटा सेट लिया था मशरूम प्लांट पे। वहां से मुझे डेटा सेट से ये दिखा कि देर आर 22 पैरामीटर्स ऑफ मशरूम प्लांट विच क्लासिफाइज इट एज पॉइजनस और एडिबल। ठीक है, अभी फार्मर को 22 एट्रीब्यूट्स याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा प्लग करते वक्त। सो आई क्रिएटेड अ एंट्रोपी बेस्ड बैक एलिमिनेशन एल्गोरिथम यूजिंग रफ सेट थ्योरी। सो जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट कि लिटरेचर सर्वे करके मुझे पता चला कि हाँ, इस पे एंट्रोपी बेस्ड एल्गोरिथम किसी ने लिखा है, उस पे मॉडिफिकेशन किया स्पेशली फॉर mushroom plant and ran that algorithm, and I, after a lot of experimentation, I found out that there were 3 sets in which each set said that you require only 3 to 4 attributes maximum to decide whether the plant is edible or poisonous. तो अभी फार्मर को सिर्फ एक सेट में 3 एट्रीब्यूट्स थे, दूसरे सेट में 4 एट्रीब्यूट्स थे, पर ये दोनों सेट प्रॉपरली वर्क कर रहे थे। तो आप प्लग करते वक्त आपको अब 22 एट्रीब्यूट्स याद नहीं करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट इज एक्सपेरिमेंटिंग। यू ट्राई टू आइडेंटिफाई। अब आपको उसके लिए डेटा सेट तो लगेगा एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए, तो या तो आपको ऑलरेडी आप यूसीआई रिपोजिटरी या कैगल, बहुत सारे डेटा बेसेस हैं, वहां से आप डेटा सेट्स ले सकते हैं, अपना एल्गोरिदम उस पर चला सकते हैं। हो सकता है आप 2-3 एल्गोरिदम्स आपने पढ़े हों, जैसे आज ही हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग में मार्कोव चेन डिसीजन प्रोसेस, बेलमैन equation, ये 2 algorithms we learned for reinforcement learning. I told them that you try to identify problem statement जिसपे आप ये दोनों algorithms रन करके देखो आउटकम क्या आता है, दोनों की एक्यूरेसी क्या आती है। फिर आप रिसर्च पेपर्स देखो कि इन दोनों के अलावा भी कोई अच्छे algorithms हैं। आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा algorithm सबसे बेस्ट है फॉर
हो सकता है कि एक डेटा सेट के लिए एक एल्गोरिदम बहुत अच्छा काम करे, वही एल्गोरिदम दूसरे सेट डेटा सेट के लिए काम नहीं करे। ये भी तो एक्सपेरिमेंटेशन है। बस यही चीजें जो आप फाइंड करते हो, वो आपको रिसर्च पेपर में एक अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करना है। और वो ड्राफ्टिंग के लिए बहुत सारे फॉर्मेट्स है, फॉर एग्जाम्पल IEEE, स्प्रिंजर। ओके, इफ आई एम गोइंग फास्ट, जस्ट रिवाइंड दिस recording and go through it. Of course, you'll get the notes also. Then there is another paper called as review paper. रिव्यू पेपर क्या है कि आप कोई एक टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक पे ऊपर जितने भी लोगों ने काम किया है, वो सब आप एक कंसोलिडेटेड उसका पेपर बनाएंगे। what people have done, how that technology came from type 2 to type 3 to type 4, मतलब क्या क्या एडवांसमेंट्स हुए, अभी उसमें क्या फ्यूचर डायरेक्शंस हैं, एंड देन अ लिटिल बिट ऑफ ग्लिम्स अबाउट व्हाट यू प्लान टू, व्हाट लूप होल्स यू हैव फाउंड आउट, एंड हाउ वुड यू गो अबाउट इट. So that's called a review paper. And last but not the least for this slide is the case study based. सो केस स्टडी इज बेसिकली कि आप कोई भी एक प्रॉब्लम यानी एक एप्लीकेशन लोगे। फॉर एग्जाम्पल आज ही हमने री लर्निंग में आई टोल्ड देम, आई एक्सप्लेन द एंटायर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेलमैन एंड मार्कोव विद द हेल्प ऑफ इमोशन रिकॉग्निशन। बट साथ ही साथ मैंने उनको 2 केस स्टडीज के ग्लिम्स दे दिए, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, आप म्यूचुअल फंड, गोल्ड, स्टॉक्स मार्केट, ये सब आप री लर्निंग का ही एक केस स्टडी है। क्योंकि री लर्निंग क्या बोलता है, एक्सपीरियंस एंड फीडबैक। तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड जिसका ऑलरेडी बहुत अच्छा मार्केट जिसने दिया है, आप वहीं पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। जिसने लॉसेस दिए वहां पे तो आप नहीं ना स्टॉक्स में पैसा डालेंगे। देन ऑनलाइन क्विज भी एक केस स्टडी है। ऑनलाइन क्विज में भी मैं क्या कर रही हूँ, थ्रू एक्सपीरियंस बेस्ड आई हैव अंडरस्टूड दैट क्विज इज अ वेरी गुड टाइप टू टीच द कॉन्सेप्ट यू हैव टॉट। मतलब उससे और बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होते हैं, हमें असेस करने के लिए भी इजी पड़ता है कि बच्चों को कितना समझा। सो ऑनलाइन क्विज इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ री लर्निंग। तो कोई भी एक केस स्टडी लेके भी आप अपने एल्गोरिदम को एक अच्छे से ड्राफ्ट कर सकते हो। तो अगर किसी ने ऑलरेडी कोई एल्गोरिदम डेवलप किया है, लेकिन आप कोई नॉवेल केस स्टडी, मतलब आजकल जितने भी नए केस स्टडीज आप ले सकते हो, नेटफ्लिक्स, amazon, इंस्टा, इस पे भी आप बहुत सारे नए नए मशीन एल्गोरिदम्स पे आप उस पे डेवलप करके उस पर रिसर्च पेपर कर सकते हो। तो दैट्स कॉल्ड एज केस बेस्ड लर्निंग। तो ये जितने भी टाइप के पेपर्स हैं, उसमें से आपको जो ठीक लगे आप वैसा पेपर लिख सकते हो। वो बाद में सोचिएगा किस टाइप का पेपर है, पहले आप अपना, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है ये आपको देखना है। तो व्हाट इज, व्हाई टू राइट अ रिसर्च पेपर, इसका आंसर ये भी है इस स्लाइड में कि आपके एनालिटिकल स्किल्स बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आप रिसर्च पेपर पूरा लिखोगे तो आपकी सोच एडवांस हो जाती है। आप आर्ग्यूमेटिव इन अ पॉजिटिव वे हो जाते हो, क्योंकि आप कोई पॉइंट को जस्टिफाई करो कि मेरा ये एल्गोरिथम इतना एक्यूरेसी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी तो आप एक पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट शो कर रहे हो ना यूनिवर्स को, दिस एल्गोरिथम इज हैज अ बेटर एक्यूरेसी। और ये कब आता है, when there is a positive argument with the confidence and with all the evidences in that paper, that is through that is through your work, right? So that confidence develops through the work. ऐसे ही आप हवे में बोल दोगे ये एल्गोरिदम अच्छा है, वो ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं झलकेगा। जब आप उसका पूरा एक्सपेरिमेंटेशन करोगे तो वो कॉन्फिडेंस एक अलग ही आपके इंटरव्यू में, थ्रू कोलैबोरेशन में या टू द आउटसाइड वर्ल्ड में, दैट वुड बी समथिंग डिफरेंट। ओके, सो योर एक्सपेरिमेंटल thinking increases, your searching capability increases, you learn how to summarize things, you learn how to synthesize things. कई बार समराइज करना भी बहुत मुश्किल होता है। हमें जब कोई टॉपिक मिलता है और उसका नॉलेज हमारे पास बहुत है, यू आस्क मी हाउ डिफिकल्ट इट इज टू प्रिसाइज फॉर यू गाइज। एंड देन केस स्टडी, ऑफ कोर्स केस स्टडी कोई एप्लीकेशन के थ्रू आप बताओगे। अब मैंने इमोशन रिकॉग्निशन क्यों री लर्निंग के लिए दिया, क्योंकि मुझे पता चला कि ये टॉपिक पे किसी ने भी, ये केस स्टडी लेके किसी ने भी पढ़ाया नहीं है। और इमोशंस हमारे डेली लाइफ के हैं, हमें इसमें नया कुछ सीखना नहीं है। हम री लर्निंग यूज ही कर रहे हैं इमोशंस के लिए, क्योंकि हम हर चीज रिलेशनशिप्स में भी हैंडल करने के लिए इमोशंस को यूज करते हैं, और वो हम एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च राइटिंग, types of research, and importance of the research paper as an outcome. So I think this is a short session. Okay, you might have enjoyed learning about how to write a research paper. So the audience, I just want to know that whether you are now ready
for the next session to understand how to write a research paper. Are you really interested to write a research paper? That would be my takeaway if I have motivated you through this session. So thank you very much for the patience listening. I would be ending the recording here to continue for the next session after your feedback.